Good afternoon, beta. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes. Good afternoon, beta. चलो चलो कल कहाँ तक करे थे बेटा? कल क्लास नहीं लिए हम लोग, जूनियर्स की क्लास। परसों कहाँ तक करे थे? लास्ट क्लास कहाँ करे थे हम लोग जूनियर्स की? अच्छा, कनेक्टेड ट्यूब्स खत्म कर दिए शायद ना, कनेक्टेड वेजल्स का हो गया था। ओके चलो, नेक्स्ट हेडिंग बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ Boyle's law by quill tube method. By quill tube method, or we call it as apparatus. Very important area beta, especially for the NEET examination. It's really very important point. Chalo. So we're talking about the verification of the Boyle's law by a Quill's tube apparatus. Quill was the name of a scientist beta. He was doing an experiment with his test tube particulation. He told that the first point in this one, in the Boyle's law statement particulation, if we take the test tube somewhat like this, in which certain amount of liquid is been trapped and it is been covered with your mercury pellet like this. Okay, and we're taking the 2 points in this one beta, 1 point at this position and 1 point which is open to the atmosphere. This test tube is open to the atmosphere. As it is open to the atmosphere, so atmospheric pressure will be acting here right now. That atmospheric pressure P0 is equals to your H. And the length of the mercury pellet, whatever you are taking, is nothing but small h. This small h is nothing but of your length of your mercury pellet. Mercury pellet. Okay. And area of cross section of this one is nothing but of your A. A is nothing but of your area of your cross section. Area of your cross section. And capital H क्या हो जाएगी बेटा? Capital H is equals to 76 mm of your mercury. ये पूरे वैल्यूज मैंने लास्ट टाइम सेक्शन में पढ़ाया था मैंने. और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंपोज्ड विल बी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ. एरिया इनटू लेंथ, ये जो है ना इसके अंदर, in which air is been trapped. So volume of the air which has been trapped in that one is nothing but V is equals to A into your L part of relation. So if I take which is open to the atmosphere, yani open end is open to your atmosphere particulation, then pressure P1 V1 must be equal to your P2 into your V2. Pressure P1 volume will be equal to your length of the liquid column L1 into area of cross section is nothing but a area. When it is open to the atmosphere, P2
into area of cross section is A. Area gets cancelled. So I'll write here in terms of length, P1 L1 is equals to your P2 into your L2. In terms of your length, I can write the equation as of your P1 is equals to your L1 is equals to P2 into your L2. Is that clear, beta? The level of liquid जैसे increase or decrease हो जाता, we can calculate the length of the liquid column which has been enclosed in this given condition by using the relation P1 L1 is equals to your P2 into your L2 part. अगर मैं इस ट्यूब को वर्टिकल से थोड़ा इंक्लाइन करूं तो क्या हो जाएगा? सर वो 76 सेंटीमीटर सर. यस बेटा. सर h equals to 76 सेंटीमीटर है या 760 mm. 760 mm है बेटा, सॉरी. तो ना मैसेज आया था. अगर 76 ले रहे हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होता है, सॉरी, है कि नहीं? सो दिस विल बी 760. अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो कितना बन जाएगा? 76 सेंटीमीटर ऑफ योर मर्क्यूरी. ठीक है ना? यस सर. ओके, अब सेकंड कंडीशन में देखो बेटा, अगर इस ट्यूब को हम लोग थोड़ा इंक्लाइन कर रहे हैं, यानी इफ आई एम टेकिंग द टेस्ट ट्यूब लाइक दिस राइट नाउ, इट इज इंक्लाइन लाइक दिस. ओके, ये इसका वर्टिकल कॉलम था इनिशियली. वी आर गोइंग फ्रॉम द वर्टिकल कॉलम टू योर, ये वर्टिकल कॉलम था मान के चलो, वर्टिकल कॉलम से हम लोग ने लिक्विड कॉलम को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लिया. तो ये हो गया इसका ओपन ट्यूब. दिस वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये और हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज नो डाउट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मर्क्यूरी पैलेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा और यहाँ पर तक आ जाएगा. तो ये हो जाएगा मर्क्यूरी पैलेट का हाइट. ओके, यानी इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं इसके अंदर, सो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. ये हो गया थीटा. और इसमें लिक्विड कॉलम में लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो गया एल. और इसमें प्रेशर हो जाएगा पी. अगर ये लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम यहाँ से यहाँ तक एल है बेसिकली, तो इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ राइट नाउ. एच ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम अगर एच है तो ये कितना बन जाएगा बेटा? दिस विल बिकम फॉर मी एच इनटू योर cos थीटा. सो दिस इज योर एच. मर्क्यूरी कॉलम का पैलेट का हाइट कितना है? एच. इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो गया एच cos थीटा और ये हो गया एच sin थीटा पार्ट ऑफ रिलेशन. तो प्रेशर कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? प्रेशर P विल बी इक्वल टू योर atmospheric pressure is acting in the downward direction, capital H, plus this H cos theta is acting in the downward direction, that is your H into your cos theta. So pressure on the liquid column which is been enclosed in this one is calculated with the formula P is equals to your capital H, that is nothing but of your mercury column, plus of your H cos theta. That means the height of this mercury pellet which is also exerting the pressure in the downward direction. So P बन जाएगा मेरे पास capital H plus of your small h into your cos theta part of relation. मान के चलो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गेट ए क्लैरिटी. मान के चलो मेरे पास एक यूट्यूब है इस तरह से. दिस इज योर ट्यूब इन विच दिस इज योर मर्क्यूरी पैलेट जिसका हाइट है h और इसमें लेंथ है L1. और इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, तो कंप्लीटली इन्वर्ट कर दिया मतलब टर्न्ड बाय एन एंगल ऑफ योर 180 डिग्रीज. और ये हो गया ओपन कॉलम फॉर दिस वन. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मर्क्यूरी पैलेट कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा यहाँ पर. तो ये हो गया हाइट ऑफ द मर्क्यूरी पैलेट h. और लेवल ऑफ द एयर विच इज बीन ट्रैप्ड इनसाइड विल बी इंक्रीजिंग. तो ये हो गया मेरे पास L2. तो इसमें मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ बेटा? P1 L1 will be equal to your P2 into your L2. Can anyone tell me what is the value of your what do you call that one, pressure in this one बेटा? P1 पे प्रेशर कितना होगा यहाँ पर, कोई बता सकता है क्या? सर 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कैपिटल H प्लस ऑफ योर, ये हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज आल्सो एक्सर्टिंग द प्रेशर ना. सो कैपिटल H प्लस स्मॉल h इनटू योर L1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं? यस सर. क्योंकि यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैंने बोला था ना, सो दिस इज योर P नॉट दैट इज इक्वल टू कैपिटल H व्हिच विल बी एक्सर्टिंग. और यहाँ पर P2 क्या हो जाएगा? P2 इज एक्सर्टिंग द प्रेशर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल H माइनस ऑफ योर स्मॉल h.
क्योंकि H का वेट नीचे एक्ट आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से ऊपर जा रहा है इनटू योर L2, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसका भी एक बार बता दो और एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैं ट्यूब इस वर्टिकल पोजीशन से, जो इंक्लाइंड पोजीशन था ना इससे पहले सेकंड वाला केस में, ये इसका वर्टिकल था और यहाँ से छोटा सा एंगल बना रहा था और इसके अंदर लिक्विड मर्क्यूरी पेलेट यहाँ पर तक थी इसके अंदर इस तरह से। सो दिस वन वाज समवेयर H, इसमें लेंथ था L1, दिस वाज मेकिंग एंगल थीटा। आई हैव टेकन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, मैंने इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दिया, जिसको यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है ना, ये हो गया ओपन मर्क्यूरी पेलेट। तो लिक्विड कॉलम में ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा H और ये हो गया H2। यू आर गोइंग फ्रॉम द इंक्लाइन सरफेस टू योर हॉरिजॉन्टल कंप्लीटली। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस ऑफ योर स्मॉल h इंटू योर कॉस थीटा। और यहाँ पर प्रेशर P2 कितना हो जाएगा बेटा, ओपन टू द एटमॉस्फेयर रहेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर कैपिटल H। स्मॉल h से कोई भी प्रेशर इस पे लिक्विड पे एक्ट नहीं करेगा, ओनली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सो P2 विल बी इक्वल टू योर H। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ राइट नाउ P1 L1 इज इक्वल्स टू योर P2 इंटू योर L2। तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर कैपिटल H प्लस ऑफ योर स्मॉल h इंटू योर cos थीटा into your L1 is equals to your P2 is equals to capital H into your L2. Clear? Yes, sir. Isn't it? So in the Quills tube method, when you are taking the U-tube which is being taken open to the conditions right now, I can calculate its value right now for the given conditions. मान के चलो in the Quills tube relation हम लोग क्या use कर रहे हैं, P1 V1 is equals to P2 V2. Volume I am writing in terms of your length and area of cross section. Area of cross section tube एक ही ले रहे हैं तो दोनों की जगह area same रहेगा, cancel हो जाएगा. So P1 L1 is equals to P2 L2. This is the basic formula which you are using. तो इसके अंदर मैंने एक स्टेप ले लिया, अगर ये inclined है तो इसके ऊपर प्रेशर कैसा ऐड करेगा, तो पूरा प्रेशर कैसे ऐड कर रहा है, देखो P इज इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h इनटू cos थीटा। ये दो पॉइंट्स को याद रखना है। उसमें मैंने एक एग्जांपल ले लिया, देखो यहाँ पर मैंने पूरा वर्टिकल से इन्वर्टेड हो गया, वर्टिकल से इन्वर्टेड हो गया मतलब रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो P1 L1 इज इक्वल्स टू P2 L2। तो यहाँ पर P1 कितना हो जाएगा, कैपिटल H प्लस ऑफ योर स्मॉल h, यहाँ पर कैपिटल H माइनस ऑफ योर स्मॉल h, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन and liquid column mercury pellet is acting in the downward direction, so it is capital H minus of your small h. And in the last step you are going from your inclined to the horizontal, यानी P1 कितना हो जाएगा inclined पे, capital H plus small h into cos theta. When you are going to horizontal, this mercury pellet will not exert any pressure on this liquid, on the column in which the length of the liquid column is been present or air column is been present in that given condition. तो यहाँ पर P2 is open to the atmosphere, so P2 will be equal to your H. So P1 L1 will be equal to your P2 L2, और P1 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं कैपिटल H into small h into cos theta L1, and P2 is nothing but of your H, and L2 is nothing but as well as L2. So depending upon this data, we can calculate the volumes for the given condition. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे से. Say for example, we got a closed hollow insulated cylinder, a closed hollow Balloon. insulated cylinder and is filled with gas. It is filled with a gas at 0 degree centigrade and also contains an insulated piston of negligible weight and thickness, at middle of cylinder, at middle of your cylinder. Okay, the gas on one side of piston is heated, to 100 degrees centigrade. Then
then the piston moves 5 centimeters. Find the length of cylinder. Find the length of cylinder. हार्डली 2 स्टेप आंसर है बेटा इसका, खाली क्वेश्चन लंबा है, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझो, बाकी का बाद में करते हैं. पहले डोंट बॉदर अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट यू हैव बीन गॉन थ्रू दिस वन. वी गॉट ए क्लोज्ड हैलो इंसुलेटेड सिलेंडर. मेरे पास पूरा एक क्लोज्ड हैलो इंसुलेटेड सिलेंडर है which is been filled with a gas at 0 degree centigrade में गैस फिल करा हुआ है, and also contains an insulated piston of negligible weight and thickness at the middle of the cylinder. Exactly at the middle मेरे पास एक piston भी पड़ा हुआ है. Now the gas of on one side is being of the piston is heated to 100 degrees centigrade. Then the piston moves by 5 centimeters. Find the length of your cylinder. Find the length of your cylinder part of relation. कोई बता सकता है क्या? डायग्राम कोई ड्रॉ कर सकता है क्या? देखो मेरे पास एक क्लोज्ड ऐसा क्लोज्ड, you have a closed hollow insulated cylinder बेटा, and is filled with your gas. इसका लेंथ कॉलम है मान के चलो L, और इसके बीच में एक पिस्टन है. Exactly at the center we are having a piston. We are having a piston. तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितना बन गया L/2 और ये लेंथ बन गया L/2. ठीक है ना? तो अब क्या करें हम लोग ने, इसमें गैस कितना था? गैस वाज एट व्हाट टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें गैस था एट योर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था. अब इसको हम लोग ने क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया. We started heating it. One end of this one we started heating it with the burner. तो जैसा इसको बर्न करना शुरू करें तो रेड हॉट बन जाएगा, isn't it? और ये गैस क्या हो गई? 0 से 100 सेंटीग्रेड तक से चले गए. जैसे 100 सेंटीग्रेड तक चले गए, दिस गैस स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन दिस पिस्टन. सो ये पिस्टन सामने चले जाएगा. नाउ द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. तो ये हो गया पिस्टन मेरे पास, ये हो गया मेरा हैलो सिलेंडर इस तरह से. ओके, और नाउ पिस्टन हैज बीन कम टू दिस पोजीशन. यहाँ पर कहीं पर तक आ गया, यानी ये इनिशियल था, यहाँ से यहाँ तक अपने को इनिशियल था. तो ये लेंथ हो गया L/2 और ये सामने गया कितना बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर सामने गया. ठीक है, तो इसमें गैस भरा हुआ तो ये तो पूरा कंप्रेस हो गया, और ये गैस पूरा क्या हो गया? रिलैक्स्ड हो गया. तो क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसके अंदर? क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? कैन एनीवन टेल मी? ये तो क्लोज्ड है ना बेटा, गैस तो भरा हुआ है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा. एक जगह कंप्रेस हो रहा है, एक जगह एक्सपैंड हो रहा है. तो व्हाट आई कैन राइट द रिलेशन? V/T इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट. कैन आई राइट द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लेंथ बेटा? तो अब कोई बता सकता है कि ये लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना बनेगा? L/2 + 5. L/2 + 5. वेरी गुड. तो ये बना कितना यहाँ से यहाँ तक का? L/2 - 5. L/2 L/2 of your -5. V/T कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया एंड लेंथ, एरिया इनटू लेंथ बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट. एरिया ऑफ कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लेंथ. तो ये हो गया लेंथ L/T इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट. L/T इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कांस्टेंट. तो ये हो गया L/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो आई गॉट द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड टेम्परेचर. तो फर्स्ट लेंथ कितना था? L/2 प्लस ऑफ योर 5 डिवाइडेड बाय एट व्हाट टेम्परेचर बेटा? एट व्हाट टेम्परेचर रहेगा ये? 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 degrees. प्लस 273 प्लस योर 100. तो और एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर तो टेम्परेचर नहीं है क्योंकि ये तो पिस्टन है, ये इंसुलेटेड है, यानी इसमें इट विल नॉट अलाउ दैट वन टू गो टू उस वन. तो L/2 माइनस ऑफ योर 5, और ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 प्लस ऑफ योर 273. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. L/2 + 5
डिवाइडेड बाई ये हो गया 373 दैट इज इक्वल्स ये हो गया L/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 273. ठीक है ना. तो कैन आई सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ योर L फॉर दिस वन. L/2 प्लस 5 कितना आएगा? L plus 10. L by 10/2. करके देखो बेटा कितना आ रहा है L जल्दी से. $64.6. 64.6. वेरी गुड 64.6 सेंटीमीटर्स. आया सभी को? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. So ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को कंपलसरी याद रखना है बेटा, बिकॉज दिस आर द रेगुलर क्वेश्चंस व्हिच वी गेट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन. एक और एक वाला मॉडल कर लेते हैं इसी तरह से. ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी करे होंगे आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चंस. चलो नेक्स्ट वाला देखो. ये हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब of 100 centimeter length is sealed at both ends and contains 10 centimeter of mercury, 10 centimeter of your mercury column in middle, and pressure of air on either side of mercury, or 31 degrees centigrade and 76 mm of your mercury. Okay, if air column at one end is kept at 0 degrees centigrade, and other end at 273 degrees centigrade, then find the pressure of air which is at 0 degrees centigrade. चलो पहले क्वेश्चन को समझो, then try to draw the diagram and accordingly you try to go through it. फिर मेरे पास क्या है देखो, in horizontal uniform glass tube, पहले आप glass tube draw कर लो. In horizontal uniform glass tube of 100 centimeter of length is being sealed at both the ends and contains 10 centimeter of mercury column in the middle, and pressure of the air on either side of the mercury are 31 degrees centigrade and 76 mm of mercury. If air column at one end is kept at 0 degrees centigrade, another end is kept at your 273 degrees centigrade, then find the pressure of the air which is at your 0 degrees centigrade. तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ इसको. तो डायग्राम देखो ऐसा कुछ होगा मेरे पास.
यहाँ पर से मैंने सील कर दिया इसको, और यहाँ से भी सील कर दिया, ठीक है, कुछ भी। और बीच में क्या है, मर्क्यूरी प्लेट है, ये हो गया मेरे पास मर्क्यूरी प्लेट। ओके, तो टोटल लेंथ कितना है देखो इसका, इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब 100 ऑफ 100 centimeters. सेंटीमीटर लेंथ, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, सील both the ends and contains 10 सेंटीमीटर ऑफ mercury column। अगर ये 10 सेंटीमीटर ऑफ mercury column है और ये बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ 45 से होगा। 45, इसका 45, डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना बनेगा, 45, 45 सेंटीमीटर्स बनेगा, और ये भी 45 45. सेंटीमीटर्स बनेगा। बीच में मर्क्यूरी है, ये हो गया मेरे पास मर्क्यूरी प्लेट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद 31 क्वेश्चन में degrees. क्या बोल रहा है, बेसिकली ये इस तरह से बेसिकली। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक एंड को मैंने हीट कर दिया, तो नाउ एक बर्नर ले लिया, इसको मैंने एक एंड पे मैंने हीट करना शुरू कर दिया। इसका टेम्परेचर अब कहाँ से गया, टेम्परेचर हो गया 273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस एंड का टेम्परेचर हो गया 0 0 डिग्री degrees Celsius. सेंटीग्रेड। तो मैं वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ बेटा, और एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेके मैंने सिर्फ इसको यहाँ पर हीट कर दिया, तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट स्टेप। रफली कर लो, मैं फिर से डायग्राम नहीं कर रहा। ये हीट करने की वजह से क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी प्लेट सामने जाएगा, थोड़ा ऐसा सामने चले जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ चले जाएगा, तो ये टेम्परेचर कितने पे रहेगा बेटा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, और ये एंड होगा 0 0 डिग्री degrees सेंटीग्रेड, Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये लेंथ कितना बनेगा बेटा, मान के चलो ये x चले गया, ये इनिशियली यहाँ पर था ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक मान के चलो x चले गया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना बना ये 45 plus x. ये हो गया 45 प्लस ऑफ योर x, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितना बनेगा 45 minus x. 45 माइनस 45 माइनस x। बस हो गई बात, क्लियर है। मेरे पास प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो कंडीशन क्या लगाओगे, PV by T is equals to your constant ideal gas equation, PV by T is equals to constant particulation। तो PV by T अगर कांस्टेंट लगा दिया, तो प्रेशर फैले वाला पास कितना है 76, वॉल्यूम कितना है इनिशियली 45, टेम्परेचर कितना है मेरे पास 273, इनिशियल टेम्परेचर कितना है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड 31 है, सो 31 प्लस 273 कितना 273 प्लस 31 304. 4, 304. ये हो गया 304, तो ये हो गया 304। तो और एक का कितना हो गया, अब प्रेशर में लिखो राइट नाउ, तो ये हो गया कंडीशन क्या हो गया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्स्टेंटेशन में, तो ये पूरा कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो मैं इसको यहाँ पर ये निकाल दे रहा हूँ। तो ये कितना बनेगा यहाँ पर देखो अब दोनों की इक्वेट कर लो, तो यहाँ पर है प्रेशर P इंटू एक है लेंथ 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है 273, तो अनदर वन इज ऑफ योर प्रेशर P इंटू ये हो गया 45 प्लस ऑफ योर एक्स प्लस ये कितना बन जाएगा बेटा 273 प्लस 273 कितना बन जाएगा 546, ठीक है ना। अब इन दोनों की इक्वेट करो, PV T इज इक्वल टू कांस्टेंट ना बेटा, तो ये हो जाएगा P इंटू 45 माइनस ऑफ योर एक्स डिवाइडेड बाई 273 इज इक्वल्स टू P इंटू 45 प्लस ऑफ योर एक्स डिवाइडेड बाई योर 546। अगर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ तो 273 वन जा 273 टू जा जाएगा कि नहीं, सो वन जा में जाएगा, ये टू में आ जाएगा, ये P और ये P चले जाएगा, ये 45 है ये 45 है, ये तो इधर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 90 माइनस ऑफ योर एक्स, ये हो जाएगा 45 प्लस ऑफ योर एक्स, ये हो गया ना बेटा, टू इधर चले गया ना, तो इसको मैंने यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर लिया, सो 90 माइनस ऑफ योर एक्स, टू इधर चले गया ना बेटा, 2 into 45 इज 90, 2 into your x particulation, सर 90 माइनस 2x होना सर। हाँ सॉरी 90 माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, सॉरी
ठीक है ना, तो ये इधर चले गया ना, 45 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू योर 45 प्लस ऑफ योर x। क्लियर है यहाँ तक? 15 x equals to 15. x कितना आ रहा बेटा? x 15. इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर्स। तो कितना x चले गया? मेर्क्यूरी कॉलम कितना गया? 15 सेंटीमीटर सामे भागा। पूछ क्या रहा है प्रॉब्लम में? If air column at one end is kept at 0 0, degrees. another end is kept at 270, then find the pressure of the air which is at 0 degree centigrade. तो मुझे प्रेशर चाहिए, प्रेशर चाहिए 30. 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये वाला है ना। इसमें x वैल्यू Yes. आ गया तो मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ। ये इसको इनिशियल वाली कंडीशन को इक्वेट कर लो, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दूं तो कितना बन जाएगा? देखो ये हो गया 76 इंटू इनिशियली 45 डिवाइडेड बाई 304 इज इक्वल्स टू प्रेशर P इंटू ये कितना आएगा? देखो जल्दी से 30. 30. 45 माइनस 15 ना, 15. कितना? 30. 30. ठीक, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 540. 273. 273। 273. कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पूछ रहा है ना। प्रेशर हाँ, एट योर, फाइंड द प्रेशर ऑफ द एयर व्हिच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पूछ रहा है। तो ये हो गया 30। तो कितना होगा देखो, प्रेशर कितना आ रहा है? सर 102 सेंटीमीटर आ रहा। आया सभी को? पता नहीं मुझे, 102 सर। पक्का? approx 100 sir. ओके, सभी को आया? Yes sir. 102.375 centimeters of your mercury। ठीक है, Yes sir. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes sir. So by this we have been completed your expansion of your gases के पूरे कॉन्सेप्ट। ऐसे वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग ने केमिस्ट्री में भी किए होंगे, ट्यूब्स के हॉरिजॉन्टल वगैरह में करने वाले। अगर नहीं किए तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, और इस पे अच्छे वाले क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी मैं आज भेज दूंगा। टुडे ऑलरेडी सेंडेड यू द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो पूरे के पूरे असाइनमेंट्स खत्म कर लो अगर आपके पास मेटेरियल के प्रॉब्लम्स हो गए तो। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग यू प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम्स इन द क्लास सेशन। तो मैक्सिमम मैंने भेजा, तो आज के आफ्टरनून की क्लास में विल ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स व्हिच वी हैव बीन लेफ्ट आउट। ये यहाँ तक क्लियर हो गया? सो बाय दिस वी आर एंडिंग द काइनेटिक, व्हाट डू यू कॉल दैट वन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? Yes sir. जी सर क्लियर है। And let us try to start with the next topic, that is your kinetic theory of your gases. Kinetic theory of gases। पूरा केमिस्ट्री है, ऑलरेडी आप लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर में खत्म कर लिया होगा, तो उसी का एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन समझो। तो वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ काइनेटिक थियरी ऑफ योर गैसेस। ओके, चलो पहले इसके अजम्पशंस कर लेते हैं बेटा। अजम्पशंस याद है किसी को? ये कंपलसरी याद रखना है बेटा, क्योंकि विदाउट दिस अजम्पशंस अंडरस्टैंडिंग द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस विल बी नॉट पॉसिबल इन द माइक्रो लेवल। शायद ऊपर के न्यूमेरिकल्स आगे तो कर सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अजम्पशंस है इसके पास। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, याद है किसी को काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में? मॉलिक्यूल्स ऑफ Volume ऑल is द गैसेस, almost all of negligible volume, and behavior of each gas molecule of gas is same as that of all other total gases। जितने भी गैसेस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं बेसिकली, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट ऑल negligible volume, and the behavior of each and every gas molecule is same as that of your total gas molecule। ये पॉइंट क्लियर है ना सभी को? तो फर्स्ट पॉइंट आई कैन से दैट राइट नाउ, molecules of gas occupying negligible volume
negligible volume, and behavior of each molecule, behavior of your each molecule of gas, each molecule of gas is Is same. same as that of total gas, same as that of your total gas. This is the first assumption जो हम लोग को पकड़ के चलना है basically. And molecular force of attraction also negligible बेटा. अगर एक गैस हम लोग कोई टाइट कंटेनर में डाल के भिजा रहे हैं जैसे गैस सिलेंडर्स वगैरह के अंदर, तो गैस दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसको भी हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, बिकॉज एनर्जी ऑफ गैस इज प्योरली काइनेटिक इन नेचर बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ योर पोटेंशियल, बिकॉज उसके पास दोनों के बीच में गैप ही नहीं रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी होने का चांस ही नहीं होगा. तो आई कैन से दैट मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड पॉइंट, molecular force of attraction, molecular force of your attraction और negligible. Negligible. क्यों negligible? दोनों के बीच में जगह ही नहीं है, अब कहां पर एक को एक अट्रैक्ट करते बैठेंगे, नहीं ना. तो molecular force of attractions are almost all negligible as the energy of gas is प्योरली कौन से फॉर्म में रहेगी बेटा? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी रहेगी. उसीलिए अगर कोई भी सिलेंडर में से अगर गैस छूट रहा है तो बहुत ह्यूज स्पीड से बाहर चले जाते हैं. जैसे हम लोग सेंट मारते हैं, अगर एक रूम के कोने में अगर सेंट मारता है तो शायद 2 रूम या 3 रूम में भी चले जाएगी बिकॉज ऑफ द स्मेल्स इंटेंसिटी पार्टिकुलेशन. सो इट ऑक्युपाइज वेरी लार्जली द वॉल्यूम पार्टिकुलेशन, और ये पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. जितना वॉल्यूम उसके पास अवेलेबल रहेगा तो पूरा का पूरा वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा. सो दैट इज द रीजन as molecular force of attractions are almost all negligible. So energy of the gases, as the energy of a gas is purely in what form of energy बेटा? काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलमोस्ट ऑल जीरो, ऑलमोस्ट ऑल जीरो. ये अपना सेकंड assumption लेके चलते हैं इन द काइनेटिक थियरी ऑफ योर गैसेस. थर्ड वन इज राइट नाउ द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बेटा. अब जैसा मान के चलो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के अंदर जब गैस भरा हुआ होता है उसके अंदर जो प्रेशर आता है किसकी वजह से आता है? इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. Walls of the container. वॉल ऑफ द कंटेनर. अगर कंटेनर नहीं होता तो प्रेशर एक्सर्ट करने का सवाल ही नहीं होता. तो व्हेन गैस इज बीन कंप्रेस्ड इन एनी वेसल, द प्रेशर जो आता है ना, बेसिकली प्रेशर ऑफ द गैस इज कमिंग ड्यू टू व्हाट? म्यूचुअल अट्रैक्शन. इज नॉट ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ योर मॉलिक्यूल्स बट इट इज ड्यू टू व्हाट बेटा? change of momentum of the molecules which have been going contact with the wall of the container. यानी कंटेनर से जब वो कोलाइड करके पर रिटर्न आएंगे ना, वो चेंज इन मोमेंटम के वजह से अपने पास प्रेशर जनरेट होता है बेसिकली. ये भी लॉजिक पॉइंट है, अपने को याद रखना है बेसिकली. मान के चलो ये कंटेनर है, ये कंटेनर की एक वॉल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मान के चलो मास m, ये वेलोसिटी v है, ये इस तरह से गई, इसको हिट करी, फिर वापस आ रही. तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका? इनिशियल मोमेंटम था m into v, और फाइनल मोमेंटम कितना बन जाएगा? वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज कर ली तो माइनस ऑफ योर m into v. तो पूरा चेंज इन मोमेंटम कितना बना? 2 टाइम्स ऑफ योर m into v. ठीक है ना बेटा? बिकॉज p फाइनल माइनस p इनिशियल ना बेटा, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस ऑफ योर 2 into m into v इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है? क्लियर है? अगर ये वॉल के कंटेनर से एक एंगल पे मारी, अगर ये मॉलिक्यूल जो है ना इस तरह से आके हिट करी, और ये हो गया इसका एंगल थीटा, और ये एंगल से फिर ये वापस भी जा रही है विथ व्हाटएवर एंगल, एंड कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मान के चलो. ये वेलोसिटी v से हिट करी और वही वेलोसिटी से फिर वापस जा रही है. ये मास ऑफ योर m है, ये मास ऑफ योर m है. तो आपने मोमेंटम में पढ़ाई होगा, अगर इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसको क्या हो जाएगा? तो इसका मोमेंटम कंजर्वेशन अगर करोगे तो यहाँ पर एक कंडीशन में चले जाएगा, mv into your cos थीटा आ जाएगा. कौन से डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेसिकली? इसके इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? mv into your sin थीटा. sin theta. डायरेक्शन में तो ये हो गया mv into cos थीटा इस डायरेक्शन में. ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया mv, तो ये डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा mv into your cos थीटा, isn't it? और इसके डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? mv into your sin थीटा. Sin theta. isn't it? ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो जाएंगे. ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एड अप हो जाएंगे. 2mv sin theta. ठीक है ना बेटा? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो इसका एरो मार्क नीचे है, इसका एरो मार्क नीचे है. सो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस अगर लिख रहे हो तो Zero. p फाइनल माइनस p इनिशियल लिखोगे ना बेटा. p फाइनल कितना है? mv into cos mv थीटा है, cos theta. माइनस इनिशियल भी कितना है? mv into mv cos into थीटा. cos theta. तो कितना हो गया? 0. ये कितना हो गया? 0.
चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम अलोंग 2 एक्स MV एक्सिस sin कितना theta. हो गया, सो इट इज p फाइनल माइनस ऑफ योर p इनिशियल, p फाइनल कौन सी डायरेक्शन में, माइनस ऑफ योर mv इनटू योर sin थीटा में है, ये हो गया माइनस, दिस इज योर mv इनटू योर sin थीटा, माइनस ऑफ माइनस दैट विल बिकम फॉर मी प्लस, तो ये हो गया माइनस ऑफ योर 2mv इनटू योर sin थीटा, मोमेंटम इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है। Yes, sir. तो फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं बेसिकली, सो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट आई कैन राइट नाउ, pressure of the gas, pressure of the gas is not due to Mutual collision. mutual attraction, it is not due to your mutual attraction of molecules, it is not due to the mutual attraction of molecules of your gas, but क्या टाइम हो रहा है, 117. 17. okay चलो कॉलेज से कॉल आ रहा है बेसिकली, but it is due to what, rate Collision of, with the walls of container. it is due to rate of change of momentum, rate of change of momentum of each molecule due to impact with wall of container, due to impact with wall of cylinder. कोलिजन कैसा होना चाहिए बेटा, Elastic. gas molecules must be, collision of gas molecules are elastic in nature, elastic in nature, yani there is no loss of your energy during the collisions part of relation, clear hai? So this were the assumptions you need to Sir, pakka. can you explain what is the meaning of elastic? इलास्टिक कोलिजन मतलब देखो बेटा, अगर एक बॉल कोई ग्राउंड पे ऐसा गिर गया, मान के चलो यहां से ऐसा गिरा, ये हाइट h, ग्राउंड को हिट करने के बाद अगर ये बॉल फिर उतनी ही वेलोसिटी से उतनी ही हाइट को वापस चले जाए, तो इसकी लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो गई, 0. लॉस ऑफ एनर्जी इज 0, ऐसे वाले कोलिजन्स को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। जनरली क्या होता है, अगर कोई बॉल आप लेके ऊपर से डालोगे तो ये नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा हाइट जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा हाइट जाएगा, फिर थोड़ा हाइट गिरेगा, ऐसा गिर के फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, जी ठीक है ना। अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, जितनी एंगल से हिट करा या कितनी हाइट से हिट करा, अगर वो वापस उतनी ही हाइट वापस चले जाए, देन इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, सच टाइप ऑफ योर कोलिजन्स आर कॉल्ड एज फॉर व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, क्लियर है, परफेक्टली इलास्टिक, ओके ठीक है ना। जी सर। So these were the assumptions, and the remaining we'll try to do it in the tomorrow session of your class beta, and most probably if possible I'll try to make today also one more extra class on the kinetic theory of gases, time मिला तो then we'll try to complete the remaining part. Mostly कल तक हम लोग kinetic theory of gases को खत्म कर देंगे बेटा, कल एक extra class भी लेके खत्म करने की कोशिश कर दूंगा। So by tomorrow and after tomorrow section we'll try to keep the full stop for the kinetic theory of gases, और इस week का syllabus बेटा purely 15 questions from kinetic theory of gases beta, exclusively kinetic theory of gases only, and 35 questions from your 25 questions from your this one magnetic effects Magnetic of, field. ठीक है ना, या 30 क्वेश्चंस मान के चलो, 30 क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट्स से और 15 क्वेश्चंस काइनेटिक थियरी से, ठीक है। यस ओके सर, थैंक यू। Thank you. Yes, sir.